हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द इंडी ब्रूड्स। सो आज का हमारा सेकेंड एपिसोड है ऑफ द प्रेगनेंसी सीरीज, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं थिंग्स टू एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो दैट इज विद इन द फर्स्ट 4 weeks. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So now let's talk about how the baby is developing week by week in first trimester. So week 5 में egg transforms itself into an embryo, and then week 7 onwards baby का development शुरू होता है from the size of approximate and pomegranate seed to a strawberry. So पहले week 7 में it will be size of pomegranate seed, then it moves to a peanut sized baby, and then to a coffee bean, and then to an olive size. उसके बाद एक strawberry size का baby होता है. So at the end of 13 weeks your baby is almost 2.5 to 3 inches long. So ये थी थोड़ी information about the first trimester, what is happening inside of you. So next we are going to discuss about what you should be discussing with your doctor and what are the major points to note down in your first visit to the doctor. So in your first visit to the doctor will ask your first date of your last period. ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इससे बेबी की जेस्टेशनल एज डिसाइड होती है. दैट इज हाउ ओल्ड इज द बेबी नाउ ऑन योर फर्स्ट विजिट टू द डॉक्टर. सो उसके हिसाब से आपको आपकी ड्यू डेट दी जाएगी, द डेट व्हेन यू विल बी डिलीवरिंग द बेबी. यू विल बी पुट ऑन फॉलिक एसिड, जो कि आपको रिगरसली थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी कैरी ऑन करना होगा, which as discussed before, which helps in the development of the baby. Then this is the time when doctor will advise you for your first ultrasound. So आप पहले विजिट में जो डॉक्टर के साथ होगी, मेक श्योर दैट आप अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से डिस्कस करें. आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ेज़ होती हैं, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ फॉर एग्जांपल थायराइड, डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर. सो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी है, बिकॉज थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इफ़ यू हैव एनी ऑफ सच डिजीज़ेज़, तो ये सारे आपको कंट्रोल में रखनी होती है. सो फॉर एग्जांपल थायराइड शुड बी इन रेंज, योर शुगर लेवल शुड बी इन रेंज, योर बीपी शुड बी कंट्रोल्ड थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. द डोंट्स. लेट्स टॉक अबाउट द डोंट्स. सो नंबर 1, अल्कोहल एंड स्मोकिंग. अल्कोहल का कोई भी सेफ लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द डॉक्टर्स, विच इज़ okay to have during the pregnancy. So you have to completely cut down on alcohol, you have to completely cut down on smoking. Now the next thing is कि आपको कुछ भी uncooked या raw नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग स्प्राउट्स हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें रॉ इनटेक करने की हैबिट होती है. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेक श्योर इट इज़ बॉइल्ड, स्प्राउट्स आर बॉइल्ड. पनीर वगैरह हमने थोड़ा सा पका लिया हो, उसके बाद ही हम उसको इनटेक करें. Everything that you are having, fruits, vegetables, anything, salads, in fact salads में जो भी veggies वगैरह जा रही है, make sure they are properly washed before you are having them. Now the next thing is that if you are having pets at home, so if specifically talking about cats, तो अगर आपके पास cat है घर में, so you have to avoid taking out the cat litter. Cat litter can lead to severe disease in the baby, and in case अगर आप ही हो जिनको हटाना है cat litter, then make sure that you are wearing proper gloves, masks, you are taking extra care while taking it out, because again it is linked to a disease which can happen. So your hand should be properly washed after taking out the litter. The next thing is that oily or spicy food should be avoided.
इट इज़ ओके टू हैव, बट ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड खा रहे हैं. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू यू लाइक हार्ट बर्न, नॉशिया. ये सारी चीज़ें एलिवेट हो जाती है द मोर यू आर हैविंग ऑयली और स्पाइसी फूड. सो दीज वर द फ्यू थिंग्स जिनका आप ध्यान रख सकते हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, and try to minimize them and avoid them if possible. The next thing that we are going to discuss is things that you have to do, the to-dos in the pregnancy. So to-dos में हमारा पहला point है that you should start writing a journal. So writing a journal will obviously help you to retain all the special memories of your 9 months, जिन phases से आप गए हो, your ups and downs, your happy days, your bad days, your cringy mood, how did you react to certain things. तो वो सारा आपके पास लिखा रहेगा, तो it will be good to go after, like go and read it after some point of time. Apart from that, get into a habit of writing all your doubts. फिर हर दिन आपको आपकी बहुत लोगों से बात होगी, राइट? वो लोग आप अलग अलग एडवाइस देंगे. योर फ्रेंड्स विल टॉक टू यू एंड दे विल टेल यू कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ. देन वी बिल्ड अ लेवल ऑफ स्ट्रेस इन आवरसेल्व्स. सो हमें प्रेगनेंसी में स्ट्रेस कम से कम रखना है. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन ऑल योर डाउट्स. कौन सी मेडिकेशंस मुझे खानी चाहिए, मुझे क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो इफ़ दैट इज़ रिटन इन वन प्लेस विद यू, तो आपकी जो भी नेक्स्ट कंसल्टेशन होगी, यू कैन गो अहेड एंड चेक विद द डॉक्टर अबाउट योर डाउट्स. एंड अगर आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लैरिफाई होते जाएंगे, तो इट विल नॉट एड अप टू योर स्ट्रेस लेवल. आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी. मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, physically if you are active, then the pregnancy will go very well. The second point in the to-dos is the stretch marks. सब लोग जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है स्ट्रेच मार्क्स के लिए काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं दैट व्हाट शुड आई अप्लाई, व्हाट शुड आई नॉट अप्लाई. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि दिस क्रीम और दिस इंग्रेडिएंट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेच मार्क्स. ये स्किन की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है. सो किसी को होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं होते हैं. सम वॉट इट इज़ रिलेटेड टू योर जीन्स. अगर आपकी मॉम को हुआ होगा तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको भी हो. वॉट आई डिड वॉज अप्लाइंग एलो ग्रेस. एक ऑइंटमेंट आता है एलो ग्रेस. सो नहाने के बाद यू कैन अप्लाई दैट. इट हेल्प मी. आई डिडंट गेट स्ट्रेच मार्क्स, बट आई कैनॉट से दैट इट helps to remove stretch marks completely. So because ऐसा कोई भी scientific evidence नहीं है. So make sure you are moisturized अच्छे से. So the next thing is some points that ये सारे symptoms आपको जब भी notice हो, you should immediately consult with the doctor. The first is vaginal bleeding, then pain during in the pelvic region. Third is fever and pain during urination. Pain during urination can indicate to a level of UTI. So वो avoid करना है during pregnancy. So ये 4 चीज़ें अगर आपको feel हो तो make sure you are calling the doctor ASAP. Now we'll talk about some things that you should expect or can expect in your first trimester. So first thing is जैसा हम सबको पता है nausea, heartburn, vomiting. So ये सारी चीज़ें you can expect in your first trimester. बहुत common होता है, बट ये भी कॉमन होता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ना हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. नो नॉशिया, नो मॉर्निंग सिकनेस, नो वॉमिटिंग. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी ये सारे सिम्टम्स नहीं है देन समथिंग इज़ एबनॉर्मल. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसको कैसा फील हो रहता है, कैसे हार्मोन्स आर एक्टिंग. सो इट्स कम्प्लीटली ओके. सेकेंड थिंग इज़ कॉन्स्टिपेशन. Constipation is completely normal in pregnancy. सबको feel होता है because as the uterus is growing, your organs are pushing एक दूसरे के पास ज़्यादा. So constipation बहुत normal होता है. उसको avoid करने के लिए make sure that you are having fibrous food as much as possible in your diet. अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हो, so that will help in constipation. Exercise will help in constipation. Walking will help. So make sure you are doing these things, but have an open mind to expect these things as well. Third is that weight gain. So weight gain ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या इनफैक्ट फर्स्ट मंथ में भी दिखे.
कई बार ये बाद में भी वेट गेन शुरू होता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. सो इफ़ यू आर नॉट गेनिंग वेट देन देयर इज़ नो नीड टू फ्रीक आउट. इट्स ओके. नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्किन विल स्टार्ट टू चेंज. कई लोगों को स्किन डार्कनिंग हो सकती है, हेयर स्टार्ट्स टू फॉल. सो स्किन डार्कनिंग, हेयर फॉल दोनों मेरे साथ बहुत हुआ था. इन फैक्ट एलिवेटेड लेवल ऑफ पिम्पल्स वॉज हैपनिंग विद मी. सो स्किन डार्कनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू आफ्टर प्रेगनेंसी ये इट विल बी ओके. हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद कोविड बिफोर प्रेगनेंसी. सो कोविड का असर एंड देन प्रेगनेंसी led to severe hair fall. अगर मैंने कुछ भी नहीं किया होता तो I would have gone bald by now. So my doctor prescribed me with Phenufit capsules. So Phenufit क्या होता है, उसमें मेथी का तेल होता है which is quite moisturizing. So I had तो मैं एक कैप्सूल तोड़ के उसका ऑयल निकाल के अपने ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो भी कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल आप जो भी लगा रहे हो, उसमें मिक्स करके I applied it every alternate day. So it helped me instantly, like I could see better results within a week. So आप भी try कर सकते हो. Let me know in the comment section if it helped you. The next thing is that you will start going to the bathroom more. So the frequency of peeing increases, but make sure that due to this you are not cutting down on the water intake. आपको वाटर इनटेक वैसे का वैसे कंटिन्यू करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू गो टू द बाथरूम. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट heartburn and you will feel a lot more gassy. So you can expect this. This is again completely okay. लोअर बैक पेन, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही होती है एज एंड व्हेन योर प्रेगनेंसी मूव्स फॉरवर्ड. सो लोअर बैक पेन होता है, लेग्स में पेन होता है. सो लोअर बैक पेन के लिए एक नुस्खा है, आप लोग कर सकते हो कि जब आप रात में सो तो आपने पैरों के नीचे पैरों का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होता है. तो फॉर दैट यू कैन ऐड 2-3 पिलोज एंड वो जो है आपको बैक पेन में थोड़ा सा आराम देंगे. सो आपके पैर थोड़े से ऊपर लेवल पे रहेंगे. सो इट विल हेल्प यू. if you are feeling a lot gassy, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, वो मेडिकेशन आपको देंगे. बट to avoid that, what you can have in the night, you can have chilled milk which will help to cut down the level of gas और gasiness आपकी कम होगी during pregnancy. So trust me, pregnancy के पहले मैं milk बिल्कुल avoid करती थी क्योंकि बिल्कुल it did not suit me at all. But during pregnancy, when doctor advised me, when I started intaking chilled milk in the night, उससे मुझे कोई problem नहीं हुई and also it helped me in the level of acidity. So these were the few things that you can expect in your first trimester, the do's, the don'ts, what you should discuss with your doctor, how should you have, like आपका mindset कैसा रहना चाहिए when you are visiting the doctor. So अगर आपको ये episode अच्छा लगा हो तो make sure you give us a thumbs up, share and subscribe to the channel and let us know in the comment section your doubts, what you would like to see next, and we'll make sure to help you out. Thank you. Bye.